Yes, the IMF and other organizations are funding Pakistan. And sadly, what has to be used for the development of a nation sometimes get diverted to, harbor terror and, sponsor terror. We have, India, we know that has raised concerns about it and objections about it. And answering the second question also, I think the mission to send delegations across the world is to ensure that the world understands that, what kind of issues are actually, like in the subtext of, these institutions financing, countries which harbor terrorism and which finance terrorism. So this is why the government of India has sent out delegations, and we've also reached out to, friendly nations and nations which have some misconceptions that we can, resolve issues just by speaking to them and calling Pakistan over for a coffee and saying, we will resolve these conflicts. It's much more than what meets the eye for many people. So I think the exact reason why we are being sent there and to many countries is to explain actually what is happening. That every time, like I told you, every time we reach out, we try to, end this conflict, try to find ways to resolve these issues. When there are terrorist attacks on Indian soil, we cannot continue talking to people who are actually the reason behind it. And today, our own experience as a delegation, we've been to different countries. We have been able to, clear many misconceptions. We will not be able to delve into details, but we have been, able to have the opportunity to explain India's stand and also to clear a lot of misconceptions about what is happening between India and Pakistan. And we also know that many countries have condemned in very, very strong terms about what happened in Pahalgam. And nobody stands with terror. Nobody, and every country understands that, we've come to a point globally where, we cannot tolerate terrorism. So it's been a very fulfilling mission for us, reaching out to these countries, meeting people, meeting think tanks, meeting parliamentarians, foreign affairs secretaries, ministers, and explaining and, making them understand what message we bring and what India expects from them. Because the world cannot be silent spectators anymore. They have to respond. And they have to ask for accountability. Thank you. मैं पंजाब से आता हूँ और वो बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान के साथ, और मेरे पंजाब के बॉर्डर पे एक गुरदासपुर करके डिस्ट्रिक्ट शहर है, और वहां से एक जो रॉबर्ट मसीह जी आए और 11 साल में यहाँ के सेनेटर बन गए और जो भारत का नाम रोशन किया, मैं चाहूंगा हम तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे स्टेट से आते हैं तो मुझे थोड़ा लालच और ज्यादा हो गया। नहीं, देश से तो है ही, तो वो तो है ही है, भारतीय तो है ही। ऐसे अमित जी हैं, अमित साहनी जी, वो बिजनेसमैन के तौर पे 10 साल में उन्होंने एक नाम रोशन किया अपना बिजनेस कम्युनिटी में, पॉलिटिकल कम्युनिटी में। मैं चाहूंगा ऐसे ही आप सब लोग, जिनको शायद मैं पर्सनली भी नहीं जानता हूं, ऐसे ही आप सब लोगों ने जो भारत का नाम यहाँ के रोशन किया है, तो हम सब मैं अपनी तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से, भारतीयों की तरफ से आपको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जब हम आए तो हमें माननीय
दूत, भारत के दूत श्री दिनेश पटनायक जी से मुलाकात हुई। मैं बाकी और एम्बेसडर साहब से मिला इस टूर के दौरान वैसे भी, पर इनसे मिलके इतना मजा आया, इतना मजा आया। और मुझे लगता है आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको इतने सीनियर 1990 बैच के एम्बेसडर साहब भारत सरकार ने आपको दिए हैं, और आप लोग भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत इनको सपोर्ट करें। मैं चाहूंगा कि हम इनका भी तालियों से स्वागत करें। हमारे लीडर कन्नीमोली जी भी आए हैं, बाकी और मेरे साथी हैं, वो आप सब ने उनका तो बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, और सभी का दिल आप सबके लिए बहुत धड़क रहा है, सभी बहुत ज्यादा इधर आके प्रसन्न है। देखिए, भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तो मेरे ख्याल ये उस सब में आप सब लोगों का बहुत योगदान है, क्योंकि आप लोग यहाँ से पैसा कमा के भारत में भेजते हैं और भारत को अमीर करते हैं। और कश्मीर की प्रॉब्लम की हम जो बात करते हैं कि वो क्यों है, अभी भारत सरकार ने जो प्रयत्न किए, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयत्न किए, कश्मीर 5 साल से वापस पटरी पे आ गया था और बढ़िया चल रहा था, इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा था। जिस दिन ये हादसा हुआ है 22 अप्रैल को, मैं 21 अप्रैल को श्रीनगर में ही था, इतनी बढ़िया इकोनॉमी, शादियां हो रही थी, तो वो जो वहां का यूथ था वो वापस भारत सरकार से देश के साथ जुड़ गया था। तो ये चीज पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं होती, और उनको जो अपनी भर्ती करनी होती है टेररिस्ट की, तो वो कैसे करें? तभी करेंगे जब कश्मीर में अराजकता होगी, वहां की इकोनॉमी डाउन होगी, लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो वो उनको वू करना, उनको अपने शिकंजे में फंसाना आसान हो जाता है। तो जब उनके ये मंसूबे बंद हो गए पिछले 5 साल से भारत सरकार के प्रयत्नों से, तो उन्होंने जानबूझ के ये टेररिस्ट इस तरीके से अटैक किया और छांट छांट के हिंदुओं को मारा, ताकि पूरे देश में संदेशा जाए, पूरे श्रीनगर कश्मीर में संदेशा जाए कि कोई भी लोग यहाँ टूरिज्म के तौर पे ना आए और वहां की इकोनॉमी द्वारा बर्बाद हो जाए। जब ये सिचुएशन होगी तो भारत सरकार भी रिएक्ट करेगी, और वो किया, वो मेरे साथियों ने बताया, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो बात यह कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, हम दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं और वो पूरी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हम प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान की बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो क्या बना रहे हो, टेररिस्ट बना रहे हैं। हम दुनिया को टॉप कंपनियों में जाओगे तो सीईओ भारत के मिलेंगे आपको, चाहे वो गूगल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, भर भर के, चाहे वो पेप्सी है, भारत से सीईओ मिलेंगे। सीईओ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी मिलेंगे। सुनक साहब भारत ओरिजिन के थे, कमला हैरिस जी भारत ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट थी यूएस के, और मेरे ख्याल बहुत ऐसे देश हैं जहां हमारे इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं। आपके देश में तो अपना एग्जांपल है कि सीनेटर आपके यहाँ पर है, और वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट जनरल्स पूरी दुनिया में उनके टेररिस्ट जाके डैमेज करते हैं। आप दुनिया की कोई भी घटना हुई हो टेररिज्म की, उसके पीछे आपको पाकिस्तान का हाथ मिलेगा, चाहे वो ओसामा बिन लादेन ने 9/11 कराया हो, चाहे यूके में मेट्रो में बम्बिंग हुई हो, चाहे फ्रांस में हुई हो, कहीं भी आप जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे। हम भारत के प्रधानमंत्री जी वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा में पूरा विश्वास रखते हैं, और पूरी देश में हमारा यही रहता है कि हम शांति दें, हम भी ग्रो करें, दूसरे भी ग्रो करें, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। वो हमारी मान्यता तो ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी की मान्यता ये है, पर उनकी मान्यता क्या है, पैनिक पैदा करो, टेरराइज करो। हम तो ग्रो कर नहीं सकते, पाकिस्तान तो ग्रो कर नहीं सकता, बाकी क्यों ग्रो कर रहे हैं, उनको भी डाउन लाओ। वो अपनी लाइन बड़ी नहीं करना चाहते, दूसरे की लाइन छोटी करना चाहते हैं। तो जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो क्या करें, भारत को तो रिएक्ट करना था, किया, लेकिन पाकिस्तान ने दुष्प्रचार किया पूरी दुनिया में कि पता नहीं हम उनकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो 71 में जो बांग्लादेश बना, हमने तो 1 लाख लोगों ने सरेंडर किया, वो हमने छोड़ दिए उनके, पाकिस्तान के। बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी, वो तो हमारी विचारधारा है ही नहीं। तो ये बात ही हमने देशों के जो हमने विजिट किया या बाकी लोग कर रहे हैं सामने रखी। अब मेरी आप लोगों से क्या निवेदन है कि जो काम हम कर रहे हैं, हम तो 5 लोग आए हैं चले जाएंगे, पर आप लोग तो परमानेंट हैं यहाँ, 1 लाख लोग तो भारत के हैं,
और आप लोगों का अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप लोगों के अपने रिलेशनशिप हैं, सरकार के साथ है, यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ है, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, यहाँ के एनजीओ के साथ है, सब जगह मैंने देखा आपके बहुत बढ़िया रिलेशंस है। तो हम ये चाहेंगे, आपसे ये विनती करेंगे, भारत ये आपसे मांग कर रहा है, भारत ये आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप भी ये सब बातें अपने सर्कल में जरूर फैलाएं, जरूर इस बारे में बात करें कि हम शांति प्रिय हैं, हम अपनी भी खुशहाली चाहते हैं, आप सबकी भी चाहते हैं। तो इस मंतव्य से हम आप सबके सामने पेश हुए हैं, भारत सरकार ने हमारी ड्यूटी लगाई है। तो मैं यही निवेदन करता हुआ आप सबसे अभी विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।